हेलो एवरीवन, दिस इज भगीरथ और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिस्टर राहुल भारद्वाज से, जो कि अपना शेयर करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ एनआरआई फिनटेक में, जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन regarding the interview processes. Okay, so moving to the laptop screen where we will be doing video meeting with the Rahul Bhardwaj. So let's move to the laptop screen. First of all, thank you, Rahul, for joining me and giving your precious time to share the information on this platform. And congratulations for selection in the NRI FinTech. Thank you, Bhagirath. First of all, I would like to congratulate you for launching your new YouTube channel. Thank you very much. So, starting by introduction. So, please introduce yourself. I am Rahul Bhardwaj, currently IT fourth year student. Recently, I placed in NRI FinTech and I did my schooling from DAV BSCB 10th and 12th. Okay, Rahul, moving to the next part about, like to know about NRI FinTech, like what is the selection processes, what is the eligibility criteria, basically eligibility criteria or selection process के बारे में बताओ. First of all, I would like to talk about the eligibility criteria. जैसे मेरे कॉलेज में बताया गया था कि 80% से जिसका मार्क्स 12th में ऊपर रहेगा वही लोग इस कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लोग का क्राइटेरिया वही हो गया 80% 12th में. एंड देन वी विल गो टू कॉलेज फॉर द नेक्स्ट फर्दर राउंड. देयर वर टोटल 3 राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्योर. So first round is written round and other 2 rounds are interview round. Okay, so the first round was a written round. So can you please describe about this round, like in details? In written round, there were 45 questions we have to solve in 60 minutes. Okay. And questions are from different area. Like 5 questions from DBMS, 5 क्वेश्चन DBMS से हो गए, 5 क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर से हो गए, 5 क्वेश्चन एल्गोरिदम से हो गए. इसी तरह से हर एक फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था, हर एक को फ्रेम किए गए थे. और बाकी जो 10 to 15 क्वेश्चन से तुम्हारे एप्टी से एंड लॉजिकल रीजनिंग से थे. Means basically apart from aptitude, बेसिक जो कोर सब्जेक्ट हैं CS IT के उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, राइट? या like DBMS, C, data structure, algorithms, and some question from aptitude. And 10 questions from your language. Either you solve Java or C++. Oh, 10 We have 2 from options. Java, C++. That is optional, right? 10 question. So and all 45 questions were MCQ type and there were no negative marking. Okay, there is no negative marking. तो कितना कट ऑफ थे इस राउंड के, लाइक 45 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कट ऑफ तो मेरे को नहीं पता उन्होंने किस कट ऑफ पे सिलेक्शन किया, लेकिन ये बता सकता हूँ कि यहाँ स्पीड मेरे को मैटर किया. अगर क्योंकि क्वेश्चंस इजी थे, उतने टफ नहीं थे. 45 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में सोल्व करने हैं, तो वाजिब तौर पे क्वेश्चन तो इजी होंगे ही, लेकिन यहाँ एक्यूरेसी मैटर करेगा. सो लगभग मैंने 40 क्वेश्चन सही बनाए थे एज पर माय गेस. सो आई थिंक more than 35 क्वेश्चन, आई थिंक those were correct. For more than 35 क्वेश्चन got selected in first round. अच्छा, मतलब 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन, यदि 35 क्वेश्चन से आपको प्लस 35 प्लस क्वेश्चन आप सही बनाते हो तब आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ था. सो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. So what was the ratio of selection of the students who have participated in the first round and the students finally got selected from the first round? So इसका रेशियो क्या था, मतलब कितने लोग बैठे, कितने लोग सेकंड? Approx 180 to 200 students were sit down in the first round and 23 students were selected for the next round. Means out of approx 200 candidates, only 23 got selected in the first round. Yeah. Right. So it's quite good ratio, I will say.
So the पहला राउंड के बाद और दो राउंड थे, as you have mentioned that there were 3 rounds for the selection. So तो Yeah. जो सेकेंड राउंड हुआ था क्या उसी दिन हुआ था? That is on the same day or that's some different date? No, no. Second round were on the same day. After getting over the first round, we have got 1 to 2 hours. Then we have to face second round. Okay, before going to the second round, I would like to ask, like, what type of question were asked in the first round? What was the level of that question? As you said that the question was from DBMS and the core In subjects. So, what type of question were asked? in first round of for first round written round, you have to ask one Yes, to yes, ask. exactly. Yes. Yeah. In written round, question were very easy type like from DVMS. We have to guess the which type of normalization it is. We have to identify the type, and from Java or the core basics MCQ type questions. From data structure, there were from like array. We have to solve array questions, linked list questions, and heap stack. This type of question we have to face. So, from where you have prepared for all these stuff? Like, कहाँ से in basic course subject का preparation आपने किया था? कौन से resources से? इसका प्रिपरेशन मैंने मेनली तौर पे गिग्स फॉर गिग्स से किया था, और आपका एप्टीट्यूड के लिए मैंने फॉलो किया था कैंपस गेट एंड Sorry, Campus Gate or? इंडिया बिक्स. Okay, India Wix and Campus Gate for aptitude, right? या And for the basic core subject and for MCQ you have prepared from Geeks for Geeks. So what type of question and what questions were asked in that round? In first round of interview there were many questions. First, as we enter in the interview room, we have to ask, introduce yourself. After introducing myself, there were question asked from my project. My project is on network security and cryptography. तो मैंने पूरे प्रोजेक्ट को अपने एक्सप्लेन किया क्या क्या मैंने उसमें किया था. जैसे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में न्यू सिमेट्रिक एल्गोरिदम बनाया था, मैं और मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर ने. तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया और ये क्यों अलग दूसरे सिमेट्रिक एल्गोरिदम से अलग था एईएस या डीईएस से, तो उसको मैंने इलेबोरेट करके उनको समझाया. देन आफ्टर प्रोजेक्ट दे वेंट थ्रू द ऑल द 1 or 2 coding questions and then fundamental बेस्ट क्वेश्चंस. So थोड़ा डिटेल में बताएं प्रोजेक्ट के बारे में कि आपने ये प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में क्यों सोचा और कब प्रोजेक्ट बनाने का स्टार्ट किया? क्योंकि बेसिकली जनरली बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि हम कब से हम लोग प्रोजेक्ट बनाए, तो ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं. या जैसे कि हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट हम इजी हुआ. हम लोगों ने शुरू से ही अपने टाइम को जान लिया कि मेरे को 1 साल है प्लेसमेंट के पहले, इसके बीच हम काफी टाइम मिला है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव, सो वी कुड कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट बिफोर द प्लेसमेंट सीजन. तो हम लोग ने उसको कंप्लीट करने में लग गया. और हमारे मेंटर भी थी जो काफी कोऑपरेटिव थी. उन्होंने क्रिप्टोग्राफी में खुद ही बहुत 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट कर रखा था, तो हम लोग को काफी हेल्प मिला उनसे. तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि यू शुड वर्क ऑन symmetric key algorithm. There are more scope in this area, so we have taken over that topic and started to do on that project. तो मेरा प्रोजेक्ट था इस पे कि इसको मैं कितने अच्छे से इसको एल्गोरिदम को बाकी एईएस या डीएस से कितना स्ट्रांग बना पाता हूँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने मेनली तौर पे वर्क किया है की पे, कितने आप की साइज को कितना आप स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि की को आपका कोई ब्रेक. Now coming to the second round interview which we were talking about, so कितने टाइम तक ये चला, मतलब लाइक कितने देर तक था ये सेकंड राउंड इंटरव्यू? सेकंड राउंड हमारे चला आपका 30 to 40 मिनट तक चला, जिसमें प्रोजेक्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे एरे से क्वेश्चन पूछे गए आपके, यहाँ भी डीबीएमएस से मेरे को क्वेश्चन पूछे गए, नॉर्मलाइजेशन से डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछे गए, फिर 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल से पूछे गए क्वेश्चंस. या दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड. So what was the level of such question? Like it was some basic question which is generally asked in interview, or it's a kind of you know what
medium or difficult level question? One or two questions were little bit different. I observed, and other questions are slightly more easy for me because I have prepared well for this interview. So that's why I have read through all the topic, each and every topic carefully. So I didn't face So any problem from in where that you have studied all these stuffs? कहाँ से basically पढ़ा था? time. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे आपको कहा कि गेस्ट पॉगिस से मैंने तैयारी किया था और थोड़ा बहुत मैंने रविंद्र बाबू के लेक्चर को भी फॉलो किया था ताकि साथ साथ मेरा सब कोर्ट सब्जेक्ट है वो क्लियर होते जाए ताकि मेरे को इंटरव्यू में कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका जवाब इंटरव्यू सो क्या वो सेम डेट पे ही था? लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंटरव्यू तीनों सेम ही डेट पे था? नो थर्ड इंटरव्यू मेरे को थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू वी हैव गॉट 1 or 2 day time and we third round interview were scheduled at the main office of the company so we have to go there and face the interview. तो ये ऑन कैंपस ऑफर था, राइट? या ये कैंपस में कंपनी आई थी वहीं पे हमारे को प्लेस हुआ. अच्छा, तो फर्स्ट 2 राउंड हैपेंस इन द कॉलेज इटसेल्फ, राइट? Yeah, first and second round both were happened at the college. And now coming to the third round, what type of questions were asked in that third round, and what was the duration? Like कितने देर तक चला ये इंटरव्यू? थर्ड राउंड मेरे को लगा 20 से 30 मिनट चला क्योंकि ये राउंड बेसिकली आपको टेस्ट किया जा रहा था कि सेकंड राउंड में अपने जो कहीं वीक पॉइंट आपको लगा वो रिक्रूटर ने जाके अपने हायर अथॉरिटी को शायद कंसर्न किया था कि बच्चे का यहाँ थोड़ा वीक है, इसको और आप यहाँ वर्क कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन आप उठा सकते हैं कि बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं. तो उन्होंने वही वर्क किया जहाँ क्वेश्चन पूछा जहाँ मैंने फर्स्ट राउंड में थोड़ा बहुत इधर उधर टू द पॉइंट आंसर ना दे पाया हूँ, चाहे फुल्ली करेक्टली इफिशिएंटली आंसर ना दे पाया हूँ. तो वही क्वेश्चन को उन्होंने फिर से रेज किया हुआ. तो पहला राउंड या दूसरे राउंड के बाद क्या आपने उस सब एरियाज पे फोकस किया था जो आपने मिस्टेक की थी लास्ट राउंड में? हाँ, मेरे को पता था क्योंकि मैंने पढ़ रखा था, तो शायद मैंने उस टाइम पे वो चीज को सही से आंसर न दे पाया था, लेकिन मेरे को ऑब्जर्व किया था कि मैं इसको कैसे आंसर दे पाता हूँ, ये मेरे को रियलाइजेशन था. तो इसीलिए मैंने 1-2 दिन टाइम मिला उसमें वर्क किया और उसको जाके फिर सुधार कर करेक्शन करके वहाँ पे अच्छे से फिर इसको प्रेजेंट किया. अच्छा, तो थर्ड राउंड में भी उन्हीं सारे कोर्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए जो सेकंड राउंड में पूछे गए थे, राइट? थर्ड राउंड में भी कुछ क्वेश्चन मेरे को अच्छे पूछे गए और जैसे जावा से भी पूछे गए क्वेश्चन, एक्सेप्शन हैंडलिंग से पूछे गए क्वेश्चन, ट्राई कैच जैसे फाइनली ब्लॉक के बारे में पूछे गए क्वेश्चन, और जावा के थ्रेड से क्वेश्चन पूछे गए और स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछे गए, इम्यूटेबल म्यूटेबल टाइप्स ऑफ थिंग्स पूछे गए और सॉर्टिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, एल्गो से क्वेश्चन पूछेंगे. देयर आर मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन दिस राउंड आल्सो. ओके, सो ये राउंड जो है बेसिकली कितने टाइम तक ये चला राउंड आपका, थर्ड राउंड? ये राउंड मेरे को बेसिकली 20 to 30 मिनट चला. वी हैव टू फेस HR राउंड. So after third round there will be one more round, that is HR round, right? या अच्छा, तो फिर HR राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे? HR राउंड में जैसे कि वही पूछे जाते हैं, व्हाट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, या टिपिकल HR क्वेश्चन. देयर वर नो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. Oh, like personal development question, we can say, right? या वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कैसे सोचते हो किसी के बारे में, कैसे आपका कौन सा वीकनेस है, कैसे आप इस कंपनी को अगर जॉब ये सिचुएशन दिया जाए तो आप कैसे इस सिचुएशन को अच्छे से पूरा कर सकते हो, काम को कैसे टीम वर्क कर सकते हो, ये सब आपके लीडरशिप क्वालिटी, ये सब के बारे में ज्यादा टेस्ट करना चाहते हैं इस राउंड में. तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब ऑटोमेटिक था या हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा क्योंकि आवर कॉलेज, हमारे जो कॉलेज था वो पहले से ही हमारे को GD राउंड, मॉक इंटरव्यू, ये सब HR राउंड का पहले से ही शेड्यूल किया गया था. प्री प्लेसमेंट सीजन में ये सब हमारे को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसके कारण
we were a little bit easy in this type of things. So I am very we are very grateful to our college because उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि Exactly. हम इस सिचुएशन से पहले खुद को जान ले, कहाँ मेरे को स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या कमजोरी है उसको दूर कर पाया. Exactly. So कितना देर तक ये HR राउंड चला? Like any idea? एचआर राउंड आपका 10 to 15 मिनट्स ही चला मेरा. Okay. So when did you get the result about your final selection in the NRI? कंपनी ने उसी दिन मेरे को बोल दिया था कि ये 2 दिन के बाद शायद कॉलेज को रिजल्ट पहुंच जाएगा. तो आफ्टर 2 days वी गॉट आवर रिजल्ट एंड देयर वर 9 students were selected at that time. So out of 200 candidates who has participated in the first round, only 9 got Yeah. finally selected, right? Yeah, Okay, this Rahul. is the final outcome. So thank you for the sharing the information. Apart from that, आप ये बताएं कि जनरली होता क्या कि प्लेसमेंट के टाइम में या फिर प्लेसमेंट शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स यूज टू वेरी कंफ्यूज अबाउट लाइक कैसे प्रिपरेशन करें, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट कैसे बनाए, कब बनाए. So kindly give us some information regarding the same. मैं इसके प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा स्पेसिफिक बोलना चाहूंगा क्योंकि अगर आपका प्लेसमेंट के पहले कुछ माइनर प्रोजेक्ट अगर आप बना के रखते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी होता है सिलेक्शन का वो थोड़ा हायर हो जाता है बाकी स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में. तो मैं कहूंगा कि अगर आपका प्लेसमेंट जून या जुलाई से स्टार्ट होने वाला है थर्ड ईयर के एंड में, तो आप दिसंबर तक कोई माइनर प्रोजेक्ट एक बना के रखें ताकि जनवरी से आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे भी टाइम हो उस पर कुछ रिसर्च करने का या बनाने का. तो मैं बोलूंगा 1 या 2 माइनर प्रोजेक्ट आपका बन जाते हैं तो इसमें सीवी में आपका वेटेज थोड़ा बाकी स्टूडेंट से बढ़ जाता है और आप अच्छे से इंटरव्यू को टैकल कर सकते हो. और प्रोजेक्ट मतलब जहाँ कि तक मेरे जून को बात करना है तो आप वही डोमेन सिलेक्ट करें जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो, चाहे आपका जिसमें इंटरेस्ट हो. बेसिकली जून और जुलाई यानी कि फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट. सो यदि या जून 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 मिल यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के एंड से यदि प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें तो विल हैव 6 months ऑफ टाइम इन विच वी कैन मेक अ माइनर प्रोजेक्ट, इजंट इट? या और उसके बाद वो सीवी में काफी मतलब अच्छा रहेगा और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इंटरव्यू में इसके बारे में. हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल. so any additional information you wanted to share with us? Because people generally what happens during the interview, like यदि फर्स्ट जैसे मैं कोई फर्स्ट इंटरव्यू में बैठा ऑन कैंपस में ही, यदि मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है या फिर दूसरा में सिलेक्शन नहीं हो पाया Yeah. तो काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोग. सो हैव यू फेस्ड सच प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट? Luckily, first of all, I got placed in TCS, so that is off campus. So I have little bit less pressure in campus placement. तो मेरे को थोड़ा पहले से TCS में हो गया था तो इसमें जाने में थोड़ा प्रेशर कम था. तो इसको Okay, मैंने so और अच्छे से लिया था. अगर में आपका नहीं हो तो डिसअपॉइंटेड ना हो. कहाँ पे आपने वर्क किया, जैसे आपने बहुत अच्छे से 3 साल में अपने एक सब्जेक्ट को पूरा किया, अच्छे से पढ़ा हो और आपका कहीं कोडिंग क्वेश्चन उस दिन ना कर पाया हो, कोड नहीं रन कर पाया हो, इससे आपको डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस दिन आपका दिन नहीं हो सकता है. और अगर आपके क्वेश्चन उस दिन न लग पाया हो तो वो थोड़ा बहुत अनलकी हो सकते हैं. लेकिन आप एफटी को भी सीरियसली लें ताकि आने वाले टाइम में एफटी आपका बहुत रोल करता है क्योंकि फर्स्ट राउंड क्लियर एफटी ही करेगा. Okay, so means we don't have to ignore the FT too because FT भी फर्स्ट राउंड क्लियर जनरली फर्स्ट राउंड में FT ही पूछे जाते हैं. सो FT पे भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, राइट? या हाँ, एफटी पे बहुत आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और कंपनी आपका एफटी से ही आपकी लॉजिकल रीजनिंग या थिंकिंग को एबिलिटी को टेस्ट करना चाहेगी और कोडिंग क्वेश्चंस से आपका फिर सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा कोडिंग राउंड से. ओके, और डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है. अगर एक कंपनी में नहीं है तो आपको मे भी अगली कंपनी का आपका डोर खुला हुआ हो, आपको वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिले जिसपे आप इंटरेस्टेड हो. इसीलिए कभी भी एग्जैक्टली निराश होने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे पैकेज के साथ आती है. एग्जैक्टली. सो thank you Rahul for joining me and sharing such what knowledgeable information which might help many of us, many of the people. So and congratulations once again for the selection in the NRI FinTech. Thank you. Thank you Bhagirath
फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, ताकि मैं जूनियर को थोड़ा बहुत It's my हेल्प कर pleasure. It's सकूं my pleasure. और अपने बारे में एक्सपीरियंस को बता के। तो काफी अच्छा होगा अगर किसी जूनियर को मैं हेल्प कर पाया, उनके तक ये रीच आउट कर Yes, पाया sure. हम लोगों ने। Surely. या Thank you. सो इस तरह के वीडियो लाता रहूंगा मैं अपने चैनल पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, एंड इफ you have any doubt, then you can comment below, and you can watch the description box for the more such related videos. Thank you.